In this podcast, we have tried to give a psychological approach toward the concept of relationship. Why do we need relationship? Why do people cheat in relationship? What can be the best possible strategies to improve our relationship? You will get everything in this video. Watch till the end. So let's start. कुछ रिलेशनशिप एडवाइस नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं ले रहे हो, आप एक जनरल सी बात सुन रहे हो किसी आपकी लोकेलिटी में किसी का डाइवोर्स हो रहा है, उसका एक बच्चा है, तो पहला बात क्या आता है, किसी के लिए टॉक्सिक क्या होता है और आपके लिए टॉक्सिक क्या होता है, दैट्स द डिफरेंस। लेकिन आप अगर सही में रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो आप मैराथन में हो और आपका डेस्टिनेशन एक अच्छा पीसफुल हैप्पी रिलेशनशिप है। आपका डेस्टिनेशन स्टार्टिंग द रिलेशनशिप नहीं है। Hello everyone, welcome to my podcast on the series of mental health. Today we have our guest Sananda ma'am for the relationship and marriage course in West Bengal. Welcome ma'am to my channel. How are you? I'm great. Thank you so much. How are you? Thank you ma'am for coming. Even I am good. So ma'am, we are social animal and we need relationship to survive. I would like to ask you how in a healthy relationship can contribute to the positive mental health. See, as far as I can tell you that relationships are the basis of our existence. You know, without relationship, human beings cannot survive. Like it is not what it is not very new to us. Because from this time we were cavemen, we started like, you know, तभी से we झुंड में रहते हैं. You know, we stay in groups, we stay in communities. And it started only because of safety. And that continued. Like, imagine a time in the caveman period when you are alone in the wilderness, you had so much more chance to get eaten up by a lion. So we stayed in a group for our safety and security. And trust for the relationships were very important for the survival of the humankind or mankind. And it's like still it's in our DNAs. We have been like that. And just imagine a time where you have been through a very bad day, and somebody comes and hugs you, or you're feeling very low, and somebody says, "Yeah, you can do it. I know you can do it." Or you have a very big thing. You have achieved a very big thing, and you have nobody to share. So just feel that you don't have anyone, and you are in these situations. And you have someone and you are in these situations, how different those situations will become in your lives. So relationships are like, the existential need that humans have. So like, just like you have mentioned na, ki before to survive, we need a relationship. Can you go in detail like how our ancestors used to survive and what was the role of relationship at those times? Yeah, so in the ancestral time, like ancestors are, we depended on each other for thriving or living. Because just let me give an example to you. Like men those times went out for hunting, and women stayed back in the caves to take care of the elderly and the children and give birth. Okay. So that was the dynamics, and it was very well balanced. There was no feminism or there was no gender inequality there. It was just out of the physical and the natural way of being. Because men were stronger, they went out, and women were not physically that strong. And that was not the time of contraceptive and all. Women were most of the time pregnant or something. They had kids, younger kids. So that was the ecosystem that they were in. And you have to there were clans also. So you have to be keeping your children and your elderly safe from the other clans and the wilderness. So this way, when you trust each other, the relationships that were trustworthy, yes, my man has gone out for food and he'll come back with food. And the man trusting the women that yes, my family or the other family is taken care of by the women, that gave a lot of trust between them. So it was it was a balance, a ecosystem that happened. So yeah, relationships with and then
like maybe we didn't call our relationships, name our relationships when we were cavemen. But yeah, those were the relationships that we thrived on, and we had a very no the kind of relationships we have now. Probably they were very different then, but the kind of dependency and trust and falling back on those things were always there. The next questions might sound a little weird. Like I want to ask you, is there any biases like are men good in relationship or women good in relationship? What do you think? See, this is a very controversial type of question. Nobody is better in relationship. Relationships are created because according to me, we balance each other. The qualities that a woman brings to the table are not the qualities that a man has, and the qualities that a man brings to the table, women probably don't have. Like, masculine and feminine. Why do we call masculine and feminine? The acceptance of it, that yes, I am not physically that strong, and the man may provide me that perfection or that kind of safety. And the man accepting the fact that I am not a caregiver or I'm not a motherly figure, and I am very grateful to the women for providing me that, or my family to providing my family that. It's like a beautiful balance that you can have. The problem with today's world is we have lost that balance. Women are saying that we can do everything, and men are saying we don't need women. So that balance have shifted, and that's the reason why we are having so much problems in our relationships nowadays. I won't say nobody is better. Each one is required to fulfill a relationship. Both. Both matlab, I'm talking about the masculine and the feminine. You can say about lesbian or gay relationships, but they also have a masculine and a feminine. You balance each other. Qualities that you don't have, the other person brings, and the quality that that person don't have, you bring to the table, and you make a balance and a better world for yourselves. So that's the thing that we are looking forward in a relationship. And we mentioned the word masculine, right? So, most of the men confuse masculine with dominance and some other things, right? So what is the exact meaning of masculine? So masculine, I tell you, is the thing that respecting, you don't show masculine, you are not masculine when you are, asserting yourself. You don't need to assert yourself when you are masculine. So the people who, beat their wives and say that they are mard themselves, they are not the mard. I am telling you that. It requires a lot of strength and a lot of confidence to accept a woman as she is, and respect to the woman, and then still keep your dignity and keep your manliness. I'll give you an example from my own life. When I was pregnant with my child, my husband used to do everything for me. Like I was not able to stoop down and wear my shoes or something. He used to make me wear that, and he used to help me with that. So it was never like he lost his masculinity doing that. He was being a very great masculine figure, providing for me, providing me safety, and I felt safe. Masculinity gives you safety, and the masculine, the energy masculine represents as achievers. Going the material thing, going after the successes and everything. So every person, the one thing we need to get straight is that every person has a masculine and a feminine side inside of them. Right. Like being a man doesn't mean that you don't have a feminine side. So when a man loves and cares and melts down for their children, that's the feminine side of them. And the women, when go out, and being a CEO of a company and wins the world, that's the masculine side of them. So it's like to have both in you, and you have to strike the right balance to get a fulfilling and a balanced life. So masculinity is not what we see right now. Masculinity is beyond that. Masculinity is giving safety and security to your family,
Masculinity is, loving unconditionally and be unapologetic about it. So there are a lot of things about masculinity. It's not the thing that we see. It's way beyond that. Exactly. In nowadays, we use the word, alpha male, sigma male, gamma male, पता नहीं क्या क्या male वगैरह. So like, do you think वो सच में exist करते हैं ऐसे male वगैरह, or this is some, You can make made up? anything and promote it. अभी तो marketing का time है. And then you create a name and throw it out in social media and it becomes a trend. What is alpha? What do you mean by alpha male? I don't believe in this, but people say that, alpha male are someone who dominate. Like, they have very dominating nature. They are extremely confident. Yeah. And sigma male are someone who loves to do their work in a very secret manner. They are more towards introvert. Alpha male strive for social validation. And people say that sigma male do not strive for social validation. So, like, is it true? Those things are... So there are a lot of traits. So there are alpha males are very Gen Z kind of word. It's a very new thing. Okay. So there are male and female. Alpha males and sigma males and all those things are you give some kind of character traits. You glorify some character traits which are not good. Like that alpha males, as you say, it's a dominating kind of a nature. I am not very into alpha males. I don't know what exactly alpha males mean. I have to go through that. But according to what you are saying, that they're very dominating and all those things, do you think that works in a relationship? Like I'm talking in context of relationship. So I'm taking up the relationship thing. So do you think that works in a relationship in today's world? Because every woman is independent nowadays. So that dominating factor, does that work? So these are things that you are glorifying something which is not good. Giving a name, a very fancy name, and you just wear a tie and coat and say I'm an alpha male, it doesn't make sense. If you how is it benefiting you? You have to first see that how is it helping you? Is it helping you being an alpha male? What's the psychology behind attraction? Or you can say, what's the psychology behind love? You can say. In your opinion. Psychology is that, as like I was saying about the caveman time, that the women will stay at home and the men will go out and hunt and bring back food. That was that was a basic requirement for them to have that relation. Because that was a barter system. Women wanted protection and men wanted somebody to take care of their family when they were okay. So those times the relationships were like that. But now the times are very safe. You don't risk of going out alone and eaten up by a tiger or a lion. Because these times we are very safe. We are walking, like I'm from the point of view of women, like we are earning as good as our partners. We are doing good. We are educated. The world is not unsafe. So now relationships are only based on feeling good, completing each other, going back to someone. Every day, when you go back to your home, you need someone to have your back, talk to someone, because we are so engulfed in everything so flashy around us. We need a place to root ourselves down, because earlier it was so many people around us. Even not the caveman area, you can think of a grandparents generation. If you have been around then around your grandparents, you see a lot of people around them. They had their friends, like local friends, paraka friend, that locality friends, kitty party friends, and then they will have their mami ka chachi, all those, a group of that. They'll have daughter ke son. They'll have then the husband is also there. So relationships, the roles are very varied there. You had a lot varied kind of things to talk about to varied people. But now we are finding
everything in one person. Because we don't have time to have relationships with people around us. We have only one relationship, that is the husband or the wife, and we are expecting that person to be our father slash mother, brother slash sister, friend slash and everything we are finding in that person, and that's a lot of pressure to that person. To one person playing, वो तो बेचारा अपना झेल ही रहा है ना, दुनिया का वो भी झेल रहा है, and then you बिल्कुल like and expecting that person to be everything for you. वो that becomes a lot of pressure. like if you'll ask me, in my opinion, what is love, then I will say you the love is the combination of only three things. That is affection, attraction, and attachment. Affection is something that that makes us feel safe. Like some people or other people or my partner makes me feel safe. And affection can be due to varieties of things like social norms, compatibility, and the impact of movies and romanticizing things. And the second one is attraction. You can say attraction is very common due to physical and intellectual attraction towards someone. Attachment can be due to the repetitive interaction with other people. जितना बार हम इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा बात करेंगे, उतना ज्यादा अटैचमेंट बढ़ते जाएगा. So what do you think? Yeah, the thing that I explained to you covers all these, like you are finding the feel good factor. You don't need another person right now to have the kind of life that you want, because you are capable, both of the women and the men. I'm talking about, of course, a part of the women who are working and educated. So you really don't need much of taking care right now. So what you said, the feeling safe. You come home and you feel safe with someone, sharing your secrets, talking to someone, being with that person, feeling good. And then attachment is something, of course, you get attached. Of course, you are attached to that person. Of course, you are attached to whatever, because, staying together, talking to that person, every day you are being with that person, that of course creates an attachment. And then what you said, affection. Yeah, affection is also a point where you can develop love. Yes, these points are of course necessary to be in love. So ma'am, how could experience in childhood can impact our adulthood relationship? Same, like चाइल्डहुड में जो हम देखते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है. दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग. कि व्हेन वी आर टीचिंग, व्हेन से पेरेंटिंग में हम लोग देखते हैं, हम बोलते हैं कि डू नॉट टेल अ चाइल्ड टू डू समथिंग, डू दैट फॉर देम. उसके सामने वो करो, वो सीखे. तो सेम वे वो एक बच्चा जो देखता है ना बचपन से, फिर मम्मी पापा को कैसे बात करते हुए देखता है, अपने सराउंडिंग्स में जो रिलेशनशिप्स वो देखता है वो कैसे है, और उसके साथ कैसे बिहेव हो रहा है, वो कैसे है. जैसे मान लो अगर एक बच्चा होगा ना, वो बचपन से किसी का वो केयर गिवर नहीं था उसके पास, फॉर वट एवर मे बी द रीजन. वो शायद वो बाहर की किसी आंटी के साथ पड़ा हुआ होगा, कि हाउस हेल्प का उसके साथ पड़ा हुआ होगा. तो ही डिडंट गेट दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट दैट ही वांटेड और क्रिएट फॉर. तो वो क्या होता है, वो जब बड़ा होता है ना, वो वैलिडेशन हमेशा सीख करता है अपने पार्टनर के पास. ये ऑलवेज हाँ, वो अटैचमेंट उसका रहता है कि प्रोबेबली नहीं मिल रहा है मुझे, प्रोबेबली हैव समथिंग टू नॉट. फिर एक बच्चे को मान लो कि बचपन में बहुत डांट पड़ता है, कुछ भी वो करता है उसके लिए डांट पड़ता है, एंड ही ऑलवेज ट्राइज टू वो कहता है अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है अपने मम्मी पापा के सामने. तो those kind of people grow up, and क्या होता है उनका पता है, वो हमेशा वैलिडेशन ढूंढते हैं. वो हमेशा चाहते कि यस यू आर डूइंग गुड. वो चाहते कि पार्टनर बोले अच्छा वो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बिकॉज दे हैव that for they have been craving that from their parents for their childhood. So ये वाला बहुत इफेक्ट होता है. और बोलते हैं ना, हमेशा आप सुनोगे कि हैप्पी पेरेंट्स मेक हैप्पी चिल्ड्रन. एक आप मम्मी पापा का रिलेशनशिप बहुत अच्छा देखे, बहुत हैप्पी देखे होंगे, बहुत अच्छा देखे होंगे, बहुत बैलेंस देखे होंगे, तो यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी चाइल्ड.
आपको पता है कि रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसको कुछ नहीं पता, वो मम्मी पापा से ही सब सीखता है या फिर अपने सराउंडिंग से सीखता है। अगर उसको पता होगा, वो देखेगा कि दोनों एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है, बहुत फनी है, बहुत एंजॉइंग है, बहुत बहुत फ्री फ्लोइंग है, हैप्पी है, तो वो वही जानेगा कि यही नॉर्मल है। वो जब मतलब ऐसा देखेगा है ना, बहुत टेंशन है, बहुत सीक्रेटिव है, कुछ चिल्ला मिली हो रहा है हमेशा, तो ही विल नो दैट दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू हैव, वही नॉर्मल है, क्योंकि उसको जजमेंट नहीं है, उसको पता नहीं है वर्ल्ड का। एंड दैट इज द दैट इज वर्किंग, उसके सबकॉन्शियस में बैठ के वो वाला वो टेम्पलेट बैठ जाता है। इधर क्या होता है ना, एकदम अलग हो जाओगे आप जो देखे उससे, क्यों आप लगेगा कि मुझे ये बनना नहीं है, आई डोंट वांट टू बी दिस। और या तो फिर आप वही रिपीट करोगे जो आपने देखा हुआ। जैसे क्या बोलते हैं ना, अच्छा क्या सीखेगा जब देखेगा कि मतलब ना पापा मम्मी को पीटता है, वही सीखेगा ना बिल्कुल। बिकॉज व्हेन लाइक बच्चा देखता है कि पापा आते हैं मम्मी से बहुत खराब तरीके से बात करते हैं, दे गेट टू नो कि ये ऐसी ही बात होती है अपने बीवी से। True. So these, like, whatever you do and whatever the child sees when like he's in that formative, or he is not grown up, he is not yet grown up that much कि वो अपना decisions खुद ले, अपना वो thought of mind वो यूज करे, तो वो तभी तक यही चलता है, वो जो देखेगा वही सच। और जब बच्चे के टाइम में, जब आप बच्चे हो तो ना, उस टाइम पे जो आप देखते हो वही आपके सबकॉन्शियस में टेम्पलेट बैठ जाता है। पेरेंट्स का डाइवोर्स ये इम्पैक्ट डाल सकता है क्या रिलेशनशिप में? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पेरेंट्स से डाइवोर्स लिया है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े? वही वाला बात हो गया ना कि आप क्या बोलते हो, अब अगर रिलेशन, मान लो आप एक कुछ रिलेशनशिप एडवाइस नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं ले रहे हो, आप एक जनरल सी बात सुन रहे हो कि इसकी आपकी लोकेलिटी में किसी का डाइवोर्स हो रहा है, उसका एक बच्चा है, तो पहला बात क्या आता है? अच्छा फैमिली नहीं है वगैरह, इस टाइप के ना। नहीं, जनरली क्या होता है, अभी डिवोर्स बहुत कॉमन हो गया है, उसके लिए अच्छा फैमिली वाला चला ही गया है, कोई वो जज नहीं करता है कि कोई डिवोर्स ले रहा है तो अच्छा बुरा है, तो वो क्या बोलता है बच्चे का क्या होगा? हाँ, ये तो बिल्कुल। First thing that comes to everybody's mind is what will happen to the child, because we all know that divorce से बहुत, सबसे ज्यादा हस्बैंड वाइफ से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना बच्चे के ऊपर, क्योंकि बचपन में आप देख रहे हो कि अलग हो रहा है, एंड डाइवोर्सेस आर नॉट वेरी पीसफुल एंड वेरी वो बहुत इजी नहीं होता है हमारे सोसाइटी में। इफ यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट डिवोर्स, घर पे पहले बहुत बहुत ज्यादा कुछ टर्मोइल हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, उसके बाद आप डाइवोर्स फाइल करते हो। इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट इन वेस्टर्न सोसाइटी जहाँ पे कुछ हो गया, ऑन द ड्रॉप ऑफ अ हैट यू फाइल फॉर अ डाइवोर्स एंड यू गेट इट, इट्स वेरी पीसफुल देयर, बट इट्स नॉट पीसफुल हियर। तो एक बच्चे को वो जो डिवोर्स का प्रोसेस चलता है ना, उसको पूरा उसके थ्रू जाना पड़ता है। यू आर गोइंग थ्रू एवरीथिंग, यू आर सीइंग एवरीथिंग। ऐसा लगता है कि आप बंद दरवाजे के पीछे कर रहे हो तो बच्चे को पता नहीं चलेगा। दे आर द वन दैट गेट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे कैन सेंस एनर्जी। आपका एनर्जी वो सेंस करता है, उसको समझ में आता है कुछ सही नहीं हो रहा है, एंड देन वो सेपरेट हो जाता है ना, कि वो बच्चा मम्मी पापा को साथ में देख के बड़ा हुआ है, एंड देन अचानक से यू आर गेटिंग डाइवोर्स्ड, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट उसके ऊपर होता है, क्योंकि वो उसका पूरा नया सब कुछ, उसका जो बेस होता है ना, जो रूट होता है, वही हिल जाता है। तो अगर आपका रूट ही वो हिल गया होगा, तो हाउ वुड यू स्टैंड योर ग्राउंड आफ्टर दैट? आप हमेशा ही अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, आप बहुत ज्यादा वैलिडेशन सीख करोगे, क्योंकि आइदर उसको जाके उसके फादर के नई फैमिली के साथ रहना होगा, या फिर उसके मम्मी के साथ रहना होगा नई फैमिली के साथ, और के लिए, और या तो फिर कोर्ट के ऑर्डर से कभी कभी पापा मिलेंगे या कभी कभी मम्मी मिलेंगे। सो दैट इज अ ट्रॉमा फॉर द चाइल्ड। How toxic relationship can impact our mental health, and what are the early signs of toxic relationship? So
toxic relationships are, that is also very relative. Toxic relationship, किसी के लिए toxic क्या होता है और आपके लिए toxic क्या होता है, that's the difference. Given that, उसके बेसिस पे मैं नॉर्मल टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बात करती हूँ कि टॉप जैसे बोलो ना कि बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस होता है रिलेशनशिप हमारे लिए, तो वो ही हिल जाएगा तो टॉक्सिक रिलेशनशिप मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा ही. जब आपके पास सही रिलेशनशिप में होंगे, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, सब मतलब एवरी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट यू कैन थिंक ऑफ वो हो सकता है. तो ये वाला है. और साइंस ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जैसे आप बोल सकते हो बहुत कुछ हो सकता है. लाइक आपके लिए जो वही मैं बोली कि बहुत रिलेटिव होता है इसका टॉक्सिक रिलेशनशिप का. किसी के साथ मेरे साथ मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ऊंचा वॉइस में बात करेंगे तो वो मेरे लिए बहुत अपॉलिंग होगा, लेकिन किसी के लिए बहुत नॉर्मल होता है. दैट्स देयर रिलेशनशिप, दैट्स देयर थिंग कि वो लोग वैसे ही बात करते हैं प्रोबेबली. सो टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर हैविंग विद दैट पर्सन. आपके लिए क्या टॉक्सिक है, दूसरे के लिए वो टॉक्सिक नहीं हो सकता है. सो गिवन दैट टॉक्सिक एक बेसिक सा रिलेशनशिप जो खराब होने पे है, दैट आई कैन से constantly not acknowledging what you're saying, that is a very big thing. Lack of communication is something. बात ही नहीं होती है. No, lack of physical intimacy is a result of a toxic relationship में वो भी नहीं होता है और कहीं कहीं बहुत ज्यादा होता है. Like that, वही बोलती हूँ ना मैं, बहुत ज्यादा रिलेटिव है ये. किसी के लिए नहीं होता है कुछ भी फिजिकल रिलेशनशिप, एज इन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ सेक्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप. आई एम टॉकिंग अबाउट no physical hugs and touches and sitting in with each other, spending time with each other, वो भी नहीं होता है. So both things are very important. Communication is very important. Communication का बहुत जरूरी है. मतलब you have to fix time to talk to each other. अभी इतना बिजी हो गया ना लोग कि मतलब बात करने का टाइम वीकेंड्स में बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ वीकेंड्स में बात करते हैं. So when you have to talk with your husband or your wife, you set up a time in the weekend कि weekend में डिस्कस करेंगे ना, आज बहुत लेट हो गया है. So that becomes a very problem because वो कुछ ना जमता रहता है. So and then that becomes a pile of something. And when you are and then is gaslighting बहुत ज्यादा है toxic relationship. मैनिपुलेट करना. हाँ, मतलब you have done the mistake. I'll give an example with me and my husband. हम दोनों में रिलेशनशिप है. हम लोग का टाइम है कि 8 बजे कहीं पहुंचना है. I didn't मैं भूल जाती हूँ. I don't go there. And then फिर मैं हस्बैंड के ऊपर चिल्लाती हूँ कि आपने बोला ही नहीं है मुझे, आप भूल गए हो. You are the person who didn't inform me. That's the kind of that's called gaslighting. यानी बहुत ज्यादा होता है कि आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है फॉर एनीथिंग रॉन्ग दैट गोज इन द रिलेशनशिप. सो वो वाला एक टॉक्सिसिटी का वो होता है. एंड देन वो हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि टॉक्सिक आपके लिए क्या है और कितना आप ले सकते हो. व्हाट इज योर बाउंड्री, अंडरस्टैंडिंग योर बाउंड्री, and anything that goes beyond your boundary is toxic for you. हमारे जनरेशन में ना जो टॉक्सिक है वो हमारे मम्मियों की जनरेशन में प्यार था. You cannot blame that. You cannot say that was wrong because they accepted it and they were very happy with that. एग्जाम्पल दे सकते हो? एंड गोल कैसा है? नो एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ. मेरे पापा ना कभी घर पे ही यूज्ड टू डू नथिंग, तो कुछ नहीं करते थे. एक पानी का ग्लास भी मम्मी को बोलते थे पानी दे दो. एंड दे वर वेरी हैप्पी विद दैट. मेरे हस्बैंड अभी बोलेंगे ना पानी दो, ये दो, वो दो, हम खुद जाके ले लो भाई, आई एम नॉट हियर टू गिव यू. सो वो मैं बोल रही हूँ कि विच द थिंग्स दैट वी थिंक इज टॉक्सिक राइट नाउ, दैट वाज लव फॉर देम. वही प्यार था, वो प्यार जताने का वे था.
कि मैं पापा अलाउ कर रहे हैं मम्मी को पानी देने के लिए, पानी दे रहे हैं मम्मी, मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी देने की, 100 बार पूछेंगे तो 100 बार दे देंगे। तो इट वॉज आउट ऑफ लव एंड दे डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। सो यू हैव टू सी दैट व्हाट इज योर बाउंड्री, आपका बाउंड्री कितना है, आप कितना लेना चाहते हो ले सकते हो। एनीथिंग बियॉन्ड योर बाउंड्री इज टॉक्सिक। सो वी कैन गिव एग्जांपल्स बट देन वी कैन नॉट पुट अ लेबल टू समवन कि ये टॉक्सिक है ये नहीं है। Why do people cheat in relationship? ये बहुत देखा है हमने, राइट? लोग रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं अच्छे खासे वादे करके, बट बाद में पता चलता है कि सामने वाला चीट कर रहा है। तो ये क्यों होता है? जो कंफर्मिटी होती है ना, एक तो देखो चीटिंग होता है किसी का नियत होता है, वो यू कैन नॉट चेंज। कभी कभी वो होता है वो वाला कि हम अच्छा लगता है कि वो किसी और के साथ घूमूं मैं, वो अलग है। यू कैन नॉट चेंज देम, यू कैन नॉट हेल्प दैट पर्सन, दैट इज लाइक आउट ऑफ क्वेश्चन। बट जब भी बहुत प्यार में होते हैं ना पीपल, बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप देखा है, और वो अचानक से वो उसमें चीटिंग आ जाती है। वी आर टॉकिंग those kind of relationships because there is no point in talking about relationship which cannot be saved. कोई इंसान ही गलत होगा उसको क्या ही कर। बट दो इंसान सही है, वो अच्छे है, वो प्यार में थे, बट देन somehow they cheated, कुछ हो गया उसके बाद। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज कन्फर्मिटी। कंफर्म कर जाते, मतलब यू नो एक जगह पे हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, और कोई चेंज नहीं रहता है, कोई कोई न्यूनेस नहीं रहती हमारे रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है कि वो सुबह गए ऑफिस से वापस आए, खाए पिए सो गए, कुछ नया बात नहीं हो रहा है, कुछ जिंदगी में नया नहीं हो रहा है। और देन आई हैव हर्ड इन अ TEDx टॉक, आई विल टेल यू, वो बोलते हैं कि वो जिस इंसान के साथ आप रहते हो ना, उसका अगर 20% खराब होता है और 80% अच्छा होता है, इसीलिए ना इतने दिन तक आप लोग साथ में रह गए, 80% अच्छा है 20% खराब है। वो कभी होता है बहुत कंफर्मिटी हो जाती है, तो एक साथ हम लोग रहते रहते क्या होता है 80% का हमको बहुत आदत हो जाती है, उसको हम देखते ही नहीं है, अच्छा ही नहीं बोलते, कुछ एक्नॉलेज ही नहीं करते। लेकिन जो 20% होता है ना, वो इतना बड़ा होने लगता है, उसको हम लोग इतना बड़ा कर देते हैं कि वो 20% के लिए किसी और के पास हम जाते हैं। तो वो 20% हमें लगता है ये तो हमको नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप में, लेकिन हम ये एक्नॉलेज करना भूल जाते कि वो 80% मिल रहा है। ये बहुत बड़ी रीजन होती है जब दो इंसान प्यार में होते हुए भी चीटिंग आती है। इसमें फिजिकल या इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी कुछ रोल प्ले करता है क्या? जब तक वो यहाँ से कनेक्टेड नहीं होगा ना, या फिर दिल से कनेक्टेड नहीं होगा, वो फिजिकल होते हुए भी देयर विल बी नो कनेक्शन। एंड देयर मे बी कि आप बहुत कनेक्टेड हो, लेकिन यू डोंट हैव एनी फिजिकल इंटीमेसी, स्टिल यू आर वेरी कनेक्टेड। So physical, of course, plays a big role, but it is not the most important one. The most important things in relationship is respect and like how you take care of each other, how you are there for each other, how you listen to each other. All those things play a much bigger role in long term. Of course, in the short term, physical intimacy and attraction plays a huge role. But then when it is like 5 years, 10 years, 15 years down the line, these things play a much more important role than, physical intimacy. What do you think about Gen Z's relationship and what are the problems they face in relationship? So, Gen Z's, as you say, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है ना, वो है सोशल मीडिया। And we have all social media about that. हाँ, we all been talking about that. एक बहुत ज्यादा मतलब गलत एक्सपेक्टेशन लेके रिलेशनशिप को बैठे Gen Z's, because they are not ready to face the consequences. अभी अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया ना, हमारा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि Gen Z का सिर्फ है। हम लोग मोबाइल पे देखते 30 सेकंड का रील देखते देखते हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया। एंड वी हैव अ बैकग्राउंड ऑफ लाइक नॉट हैविंग फोन्स एंड इंटरनेट, बट Gen Z's पैदा ही इसी मतलब टाइम पे हुए जहाँ पे बहुत फास्ट है सब कुछ, हमको बहुत फास्ट चाहिए। The one thing that cannot come fast to you is a relationship. उसको work करना पड़ता है। I have heard a very good saying, love is a verb. Verb मतलब you have to work for it. You cannot
be in a relationship and not work to make it better. It's a everyday work. And that people understand. Gen Zs have failed probably somehow. उनको कुछ अलग मतलब वो लोग फेस नहीं करना चाहते हैं. Confrontation and facing the problem is a challenge for them. Like I'll give you an example कि उनको मैंने देखा है कि अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाता है ना, so they not go and confront and talk to that friend. They'll give a cryptic message, their WhatsApp status. It trusts no one. Then क्या होता है? उसको दिखाना था वो देखता है, हम वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होता रहता है कि मुझे कुछ गलत बोल रहा है. उसको समझ में भी आता है और उसको लगता है, लग नहीं लगता है, किसी और को भी लग जाता है. Then you create a lot of more problems. That going out and confronting and communication is a big problem, I guess. वो वाला प्रॉब्लम तो फेस करते हैं. एंड देन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है. उनको लाइफ का स्टैंडर्ड ना सोशल मीडिया सेट करता है लोग के लिए. मतलब जेनजी के लिए मैंने जो मेरे जो द ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स जो बहुत यंगर सिबलिंग्स हैं उनको देखती हूँ मैं, तो वो हमेशा एक अलग ही दुनिया में रहते हैं ना. उनको सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, उनको फ्रेंडशिप के लिए चाहिए, कपड़ा भी पहनना है वो इंस्टाग्राम के लिए पहनना है, और उनको कहीं जाना है वो भी इंस्टाग्राम के लिए जाना है. किसी के साथ मतलब एवरीथिंग इज सोशल मीडिया. उनको दिखाना है लोगों कितना उसके अंदर है. और आप जिसको देख के अपना बेंचमार्क सेट करे ना कि ये बहुत अच्छा है, इसका लाइफ तो सेट है, जो आप देख के वो कर रहे हो ना अपना बेंचमार्क सेट, उसका फोटो, उसकी फोटो के पीछे क्या है, हाउ डू यू नो? यू डोंट नो. Or just judging. One hour you are setting an like expectation out of a photo and a very flashy photo that you see on Instagram. ये अपना expectation गलत सेट हो जाता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है. और इन मतलब वो क्या बोलते हैं ना उसको, बहुत ज्यादा सरप्राइजेस. कोई नो लड़कियां एक्सपेक्ट करेंगी कि मेरे लिए हमेशा मेरा बॉयफ्रेंड फूल लेके आएगा एंड ही विल सरप्राइज माय डे. एंड बॉयफ्रेंड सोचेगा कुछ गर्लफ्रेंड कुछ अलग करेगी, एंड देन दैट डजंट हैपन. लाइक एवरी डे दैट डजंट हैपन. दैट मे हैपन वंस इन अ व्हाइल, बट वो नहीं होता है हर दिन. एक रिलेशन वो हाँ ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप को वो स्पार्क करना जरूरी है, कुछ अलग करना जरूरी है, कुछ नया करना जरूरी है, बट सरप्राइज कितना ही आप प्लान करोगे. आधा प्लान करोगे ना, मुझे पता चल गया है शिवम के दिमाग में कुछ चल रहा है, मेरे लिए कुछ प्लान कर रहा है, तो दैट सरप्राइज भी होता है वो. एंड देन यू सरप्राइज्ड एंड देन यू क्लिक अ फोटो एंड सी दिस एंड पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम. सो वो वाला नहीं चला. वो एकदम ना बहुत बेसिक सा कम्युनिकेशन रखना है, एक्सपेक्टेशंस को लिमिट में रखना है. एक इंसान नहीं कर सकता है बहुत दिन से. और मैं हमेशा बोलती हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा फंडा है, मतलब मैं हमेशा मानती है वो ही करो जो तुम जिंदगी भर कर सकते हो एक रिलेशनशिप में. पहले दिन कुछ फर्स्ट 1 to 3 months यू डू समथिंग एंड देन यू कैन नॉट कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. मतलब वो मत करो. अगर तुमको अपने को पता है ना, यू नो योरसेल्फ, यू डोंट डू समथिंग नॉट कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. वो आप एक्सपेक्टेशन सेट करते हो बहुत कुछ करके वो इंसान को खुश करने के लिए, एंड देन उसका वो रह जाता है, बेंचमार्क वो रह जाता है कि ये तक तो जो जा सकता है, दैट मच ही कैन डू, एंड उसका कैपेसिटी है ये, वो कितना बार यहाँ तक जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स. आप उतना ही करो जितना आप कर सकते हो जिंदगी भर. देखो आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलते रहोगे, आई लव यू बोलना आता ही नहीं है. आप वो जबरदस्ती आप पढ़ने के लिए शुरू में बोल दिया आपने, फिर क्या करोगे? आई लव यू तो आपको बोलना नहीं है. आपका लव लैंग्वेज है एक्शन. आपको मुंह से बोलना नहीं आता है, आपको ये बताना होता है. बट हाँ, बीच बीच में उनको खुश करने के लिए आप बोल दोगे, लेकिन रोज तो नहीं बोल पाओगे. सो डू समथिंग व्हिच यू कैन कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. दैट इज समथिंग आई ऑलवेज बिलीव इन, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट ऐसा कुछ करो ही मत. उनको ऐसे ही सेट होने दो एक्सपेक्टेशन उनका, लेकिन वो आपको रियली पहचानेंगे. रियल जो होता है ना आपका, वो जाने.
और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है अभी रिलेशनशिप्स में, अभी नहीं, ये सब टाइम का प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप को ना लोग एक एंड गोल समझ लेते हैं कि वो डेस्टिनेशन है। वो रिलेशन है, रिलेशनशिप स्टार्ट है फॉर अ मैराथन यू गोइंग टू रन। और मैराथन हम लोग स्प्रिंट पे नहीं जाते हैं, मैराथन हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं। स्प्रिंट होता है जब आपको वन नाइट स्टैंड करना होता है ना, वो आपका सारा करिश्मा आप लेके आओ, जो होता है वो करना है। लेकिन आप अगर सही में रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो आप मैराथन में हो, और आपका डेस्टिनेशन एक अच्छा पीसफुल हैप्पी रिलेशनशिप है। आपका डेस्टिनेशन स्टार्टिंग द रिलेशनशिप नहीं है। तो Yeah, that is something that I think a lot of Gen Zs are missing in their relationship or in their communication style. मैम आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जो कि एक अनहेल्दी रिलेशनशिप को कॉज कर सकते हैं, राइट? बट हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को जो रिलेशनशिप में हो रहे हैं उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसा स्ट्रैटेजी जो हमें हेल्प करे एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए? So the most important thing that you can do is communicate. Communicate more. You know, बातों से ठीक नहीं हो सकता, ये बहुत कम चीजें होती है। You can resolve lot of your problems through communication. क्योंकि जब बहुत दिन हो जाता है ना एक इंसान के साथ रहते हुए, you expect that person to understand. But then when that person don't understand, you hold grudge. वो आपके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। That person is not getting to know कि आप किस चीज से गुजर रहे हो। So communicating your feeling to the other person is very important. Again, I'm telling you, we are talking about relationships where both people are in love, but they are falling out of love or they are having a lot of conflicts. We are not talking about relationships where there is no love. वो तो अलग ही है। We are talking about relationships वो बहुत प्यार में थे या फिर प्यार में है लेकिन बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स चीजों के वजह से होते हैं, पावर के वजह से होते हैं कि होल्ड्स अ पावर। इसके पास पावर है वो करने के लिए, मतलब डिसीजन लेने के लिए। एक रिलेशनशिप होल्ड्स अ पावर। पहले ये प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि पहले ये गिवन था कि जो मेल है वही पावर लेगा डिसीजन, पावर उसी के पास है। बट देन द रोल्स हैव चेंज्ड एंड नाउ बहुत चीजें ऐसी है कि जिसमें मतलब वो डिसाइड करना पड़ता है। तो यू सेट दैट विथ कम्युनिकेशन कि पावर किसके पास है, ये चीज का पावर आपके पास है, वो चीज का पावर मेरे पास है। यू सेट दैट रूल एंड व्हेन यू गो बाय द, बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे पावर के बारे में। जैसे हमारे रिलेशनशिप में इट इज अ सेट दैट मनी मैटर्स आर टेकिंग केयर ऑफ मी बिकॉज आई हैव बीन अ बैंकर फॉर 30 years. सो मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है। सो मेरे हस्बैंड बोलते ही नहीं है कुछ फाइनेंस के बारे में मुझे, तो अब पैसे को लेके झगड़ा ही नहीं होता है कभी, बिकॉज वो डिपेंड करते कि मेरे ऊपर कि यू नो द बेस्ट, यू डू व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर अस। कैसे और मेडिकल चीज के लिए कुछ भी होता है, जैसे ही इज अ डॉक्टर, मेडिकल के लिए कुछ भी होता है तो वी डिपेंड ऑन हिम ओनली। वी आर नो वन टू सजेस्ट टेल कि ये करो वो करो, जो बोलता है वो हम लोग आंख बंद करके मानते हैं। वी डोंट लाइक थिंक अबाउट एनीथिंग, ही इज द अथॉरिटी देयर। सो ये पावर वाला चीज सॉर्ट करना पड़ता है एंड एवरीथिंग कम्स विद कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है कि हु होल्ड्स द पावर अबाउट व्हाट फैक्टर। घर में खाने के लिए क्या बनेगा ये भी डिसाइड करना जरूरी है कि ये डिसीजन पावर भी किसके पास है। इफ वुमेन इज गोइंग टू डिसाइड, वो पावर कि आप डिसाइड करो जो भी आप बनाओगे मैं खाऊं, या फिर अगर आप डिसाइड करने के लिए इनकेपेबल हो, आप नहीं कर पा रहे हो, if I'm talking about the lady, if she is the woman, if she is not ready to decide that, then the man has to decide and then the other person has to abide by that. Everything वो वाला communication important है and then conveying your feelings कि आप किस चीज से गुजर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आपके अंदर चल रहा है, आप क्या चाह रहे हो। You know, do not say कि you are like that, you are that, you did that, you always do that. Don't say that you. You said, I feel very bad when you do that. So when you're attacking the other person, you're just telling कि how you feel.
about that, about the situation that is going on. कि अगर मेरे हस्बैंड कुछ गलत करते हैं और वो अनइंटेंशनली करते होंगे, अगर उन दोनों में प्यार है कि वो इंटेंशनली मुझे हर्ट करने के लिए तो कुछ करते नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं उनके कुछ में होगा, या फिर वो बहुत ज्यादा मैंने इतना बार यू करके बोल दिया कि वो अच्छा वो तो बोलती रहेगी मैं करती हूँ, मैं करता हूँ ऐसा करके। अगर दीज आर द थिंग्स, तो अगर मैं बोलती हूँ कि यू नो व्हाट, आई फील वेरी बैड when you do the same thing every time, when you don't come on time every day, I feel very left out, I feel very alone, I feel very bad, I feel sad. So then how would you feel? You are giving that other person the power कि आपके पास वो power है मुझे help happy करने के लिए, मुझे secure करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, टू मेक मी कंप्लीट एज अ फैमिली, वो पावर आपके पास मैं दे रहा हूँ और आप नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं खराब फील कर रही हूँ। यू गिविंग दैट पावर टू दैट पर्सन, द पर्सन यू लव। बट व्हेन यू से कि आप कभी टाइम पे नहीं आते हो, आप सबसे घटिया इंसान हो, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो, तो यू आर ब्लेमिंग दैट पर्सन। अब वो वॉल बन जाता है, वो बोलता है कि आप जो भी बोलो। बिल्कुल। That communication is very very important in a relationship. And then वो पहले में एकदम first question में वो बोली ना कि there were lot of people around when in our earlier generations. Now only one person is there and you expect that person to do everything for you. So वो वाला possible नहीं है। तो अपना expectations को check पे रखो, या फिर अपना मतलब ग्रुप पर आओ, आपका जो दायरा है ना फ्रेंड्स का, लोगों के साथ मिलने का बात है, वो वाला मिलो। अब यू गेट मेक मोर फ्रेंड्स, आप अपनी मम्मी से बात करो, अपने बहन से बात करो, आप फ्रेंड्स के साथ बात करो, या फिर हस्बैंड के लिए आप जाओ वर्क में कलीग्स में किसी को ढूंढो जो आपके साथ अच्छा बैठता हो, गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, डिस्कस विद दैट पर्सन। वो क्या करता है ना, तो आपका जो लोड है, इमोशनल बैगेज है, वो थोड़ा कम कर देता है। व्हेन यू कम बैक होम यू आर नॉट फिल्ड विद इमोशनल बैगेजेस कि एक ही इंसान को जाके सब कुछ बोलना है, बिकॉज यू आर ऑल्सो, बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो फिल्ड विद ऑल ऑफ दिस। तो वर्क का प्रेशर रहता है, घर का प्रेशर रहता है, एंड देन अदर पर्सन इज डंपिंग एवरीथिंग ऑन यू, इट्स बिकम्स टफ। सो वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अपना सर्कल, अपने अराउंड लोगों को बढ़ाओ जिसके साथ आप बात कर सकते हो। सो वन मोर थिंग इज देयर, बी थिंग्स टुगेदर। कुछ चीजें ना एक साथ करने की जरूरत होती है कि फाइंड अ थिंग, फाइंड अ पैशन विच यू कैन डू टुगेदर। जैसे लोगों को, आपको बुक रीडिंग का शौक है, तो यू पिक अ बुक, ईच वन ऑफ यू रीड दैट बुक एंड डिस्कस अबाउट ईच अदर्स। क्या आपने पढ़ा है, क्या आपको मिला है, क्या आप वो कर रहे हो। सो दैट क्रिएट्स कुछ बात करने की, नया बात करने की ना वो रहे। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चों का थिंग। यू हैव समथिंग न्यू टू टॉक अबाउट, आपका कुछ पैशन होगा। और फिर ना और कुछ चीजें अलग से भी कर, जैसे मैंने बोला कि अपना फ्रेंड्स बनाओ, आपका ग्रुप बनाओ, आप योगा में चले जाओ, योगा आप चाहते हो ना, वहां पे आपका ग्रुप बन जाएगा। जो भी आपको लगता है, डांस क्लास ज्वाइन करने का मन कर रहा है तो आप डांस क्लास ज्वाइन करो। तो अपना ना अलग अलग ग्रुप बना के वो वाला कुछ अलग सा हॉबी, उसके बारे में भी फिर आपको बात करने, आज पता है मेरे डांस क्लास में ये हुआ, आई लर्न दिस न्यू थिंग। सो वो वाला एक इंटरेस्ट करता है, वो वाला दोनों के बीच में कुछ नया बात करने का। एंड देन टेकिंग ब्रेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो तो लेटर होता है ना, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, देन द कम्युनिकेशन इज ओनली पार्ट दैट कैन रिजॉल्व। फर्स्ट बार में नहीं होती, वो कॉन्शियस करना पड़ता है। जब वी आर सो accustomed to blaming the other person कि you are the not right, you are at fault, we think we are the best and the other person is doing everything wrong, वो तो नहीं होता है ना। तो वो वाला चीज हम लोग नहीं कर पाते ना, वो बहुत कॉन्शियसली करना पड़ता है। वो नेचुरली हो जाता है कि हम लोग यू करके बात करते हैं, आई करके बात करना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। एंड देन improving your relationships, you can do a lot of things, take vacations, breaks and all those things, वो तो improve करता है। But communication is the only thing that can save your relationship. And accepting the fact that thing is not working in your relationship and taking it is a big thing. Like if you're not
no, if you are in love and still you cannot resolve your conflict by communication, है ना, कभी कभी ये होता है ना, you are trying to resolve it, अब बात करना चाहते हो, every time you sit and talk, that no resolve, like that turns into a fight. तो आपको then you can bring in a third person as a therapist or as a counselor जो आपको help कर सकता है, and accepting the fact कि गलत हो रहा है and I need help is very important. वो ही हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते. वो एक स्टार्ट पॉइंट होता है अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का. सो एज अ टुवर्ड्स एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, मैं चाहता हूँ आप दो सब बोले हमारे ऑडियंस के लिए. सो रिलेशनशिप के बारे में ऑडियंस को जितना अवेयरनेस होगा ना, मतलब अपने हेल्दी रिलेशनशिप्स को ऐसा नहीं है कि आप मतलब बाहर जाके किसी के साथ शेयर करोगे तो आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा. सो इट्स वेरी टफ टू गेट अ पर्सन यू कैन लव एंड स्टे विथ. और जब अगर आपको ऐसा प्यार करने वाला मिल जाता है ना, तो डोंट लेट दैट पर्सन गो, एंड जो भी करना होगा इसके लिए यू टेक हेल्प. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना, छोटा मोटा चीज ऐसा इतना बड़ा हो जाता है कि हम लोग सोचते भी नहीं, बाद में जब बैक आके हम लोग सोचते कि क्या हुआ था. बिकॉज नो नॉट मच रीजन कि क्यों हम लोग उस रिलेशनशिप में से बाहर आए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक only romantic relationship. I'm talking about every kind of relationship. So जो अगर आसपास आपको प्यार करने वाले मिलते हैं, आपके क्लोज लोग जो है, सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट से, एक झगड़े से उसने कभी कुछ बोल दिया उसको किसी ने आपको, तो डू नॉट टेक दैट इन हार्ट. आप फॉरगिव करना स्टार्ट करो. इट्स नॉट दैट बिग. आप आपके हेल्प लो. अगर थर्ड पर्सन किसी को इन्वॉल्व करो, अगर आप थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो तो किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व करो. आप देखोगे कि इट्स नॉट वेरी बिग अ प्रॉब्लम when people love each other. You can resolve most of the problems when there is love or care or affection. बस अपना बाउंड्री सेट करना इम्पोर्टेंट रहता है रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए. दैट यू प्रैक्टिस, एंड विद प्रैक्टिस everybody can set healthy boundaries. So yeah, I hope everybody have happy and healthy relationships. And yeah, thank you, Shivam. You are doing a great job. सो मिस मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर ऑडियंस. For having me, I'm more than happy to come and talk to you about it. थैंक यू. Thank you so much.